Hi friends, hi student. So now I'm going to uploading the next video for you. So in the last video, I have given the introductory class. Okay, means what is the merit, what is the demerit, what is required, what is not required. So I think you all gone through my videos and all. So you have got some little bit idea how you need to prepare for the UPSC exam, right? So today I'm going to discuss the syllabus because syllabus is very important and how to interact with syllabus. This is also very important, and how to study and what to leave. This is also very important. So in today's session, I'm going to interact with the syllabus of UPSC examination. So basically, I told you in the last session that I'll take your economics whole, I'll take your history. In history, I didn't take ancient history. I'll take your modern history from 1757 to 1857, and then since uh, 1757 to 1857, 1857 to 1947, and since 1947. So I'll take care of your like the modern part of the history and uh, and world history as well. So world history as well. So in economics and in history, I'll take care of your whole syllabus from the mains and like for the prelims examination. So 2023 prelims examination is going to be means like in the next few months. So I think uh, you are preparing for the 2023 UPSC prelims examination, and those who are willing to give the examination in 2024. So these videos, lectures and the class is also helpful for them. So need not to waste our time. Let's start the session. So today I'm going to interact with the whole syllabus, but I'll take your Pol Science, history, Pol Science, history, and economics. Three subjects only, and CSET as well because I'm a technocrat. So definitely I'll take your CSET part. Yeah. So this is all about. And if it is required, then the Hindu newspaper analysis I'll also take. Okay. So okay, let's start. So the thing is, how to interact with the syllabus for December 2022. So how to interact with the UPSC syllabus. So mainly I'll take your you know political science, political science. Then second one is your economics, and third one is your history. But in history,
modern history and world history. In modern history and the world history, I'll take. And your the fourth one is your CSAT. This is also very important for like who are not engineers, who are doctors, and who belongs to Hindi medium and who belongs to like the art background. So CSAT is also important for that. So I'll discuss these: political science, economics, history, CSAT. So rest of these means even some part is also like that. Like the fifth one is what? Science and technology. Science and technology. Then your sixth is what? Geography. So science and technology and geography. So these six subjects are very important, but within this science and technology, there is means like ecology part. So that is also important. But these six subjects are very important in your UPSC preparation, in UPSC examinations. Okay, so but I'll take till here. I'll take till here. I'll take your pol science, economics, history, and CSAT. So I'll discuss your whole syllabus. I'll discuss today your whole syllabus, whether I'm teaching that subjects or not. So I'll discuss your syllabus of science, tech, and geography as well. But I'll take your pol science, economics, history, and CSAT. So weekly you will get the lecture of all these four subjects. You will not get the lectures of fifth and sixth one. But if you want to take some help, then you can. If you want, yeah, right. So So first I'm going to discuss with your political science. The first one, the subject, that is political science. So I think जो यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे या फिर जो थोड़े सीरियस होंगे, उन्हें पता है कि पॉल साइंस के लिए क्या क्या रेलेवेंट मटेरियल है या क्या क्या उन्हें पढ़ना है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पॉल साइंस में एक बुक आती है मींस पॉलिटिकल साइंस के लिए, रमेश सिंह की, और मैं आपको आज सारी बुक्स भी दिखाऊंगा। सो ये आपकी बुक्स है ये। सो इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत, कौन सी बुक लेंगे? एम लक्ष्मीकांत। ये बुक आप जो है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आप रिफर कर सकते हैं। सो पॉल साइंस में आपका फर्स्ट वन इज व्हाट? द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर सबको पता है, हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, करेक्ट। सेकंड वन
आप जो है कि लक्ष्मीकांत चाहे तो लिख लें कि मीन्स लाइक एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 10th onwards. Okay, NCERT books from 10th onwards. Then तीसरा आपको जो है कि लाइक लक्ष्मीकांत मैंने आपको दिखा भी दिया। लक्ष्मीकांत मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका एम लक्ष्मीकांत है, दिस वन। सो ये बुक आपको परचेज करनी है। सो एम लक्ष्मीकांत ये बुक लेनी है पॉल साइंस के लिए। फिर आपका जो है कि इसमें फ्रंट लाइन आता है, कुछ मैगजीन्स आते हैं, जैसे कि आपका फ्रंट लाइन योजना और ये सारी चीज, एम लक्ष्मीकांत, फ्रंट लाइन योजना और बट ऑब्वियस मेरा वीडियो लेक्चर, माय वीडियो लेक्चर। ओके, सो माय वीडियो लेक्चर। सो दीज आर सफिशिएंट थिंग्स। अगर आप इसको फॉलो करते हो, द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक फॉलो करना है। यस, दोनों में से एक फॉलो करना है। एनसीईआरटी की बुक फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स पूरी नहीं पढ़नी है, 10th 11th 12th आप जो है, एंड देन एम लक्ष्मीकांत को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। एंड देन आप फ्रंट लाइन मैगजीन और योजना मैगजीन जो है आप ले सकते हैं, एंड मेरा वीडियो लेक्चर आप जो है रेगुलर देख सकते हैं। तो दीज आर द सफिशिएंट रेलेवेंट, relevant contains या relevant material that is required for Pol Science। अगर इतना आप एक रूटीन वाइज पढ़ते हैं तो it is sufficient, I think। Okay, so I think आपने नोट कर लिया होगा। So अब दूसरे सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। So now अब जो है मैं सेकंड सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज इकोनॉमिक्स। कौन सा? इकोनॉमिक्स। सो द सेकंड वन इज व्हाट? Economics. Economics is my favorite subject. So the second one is what? Economics. So देखिए, economics जो एक सब्जेक्ट है, so पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको मैं लिख दूंगा। इकोनॉमिक्स एक तरीके से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप क्या बताओगे? आप सिंपली बोलोगे कि ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मींस वॉट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, within that you need to manage your all the things, so that is the economics। so देखा जाए तो आज के टाइम में, या फिर अगर सिंपली मैं बोलूं तो जो हाउस होल्ड की, जो घरों की हाउसवाइफ होती हैं या जो गृहिणी होती हैं, उनसे बड़ा इकोनॉमिक्स कोई नहीं है। क्योंकि उनको क्या होता है कि कुछ दे दिया जाता है, लाइक कि हाँ ये 20,000 30,000 पकड़ो, एंड इसमें आपको अपना घर क्या करना है, मैनेज करना है। यस, सो
अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो हाउसवाइफ से जो है कि बेटर एग्जांपल इकोनॉमिक्स आपको नहीं मिलेगा. सो सिंपली इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट? ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स वॉट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, you need to yield much and much output from the minimum input. Simple. That is the economics. Yes. So optimal use of resources, that is the economics. तो simply हम आज सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं रहे, बट वही है कि समटाइम्स होता है ना कि लाइक आपका फेवरेट सब्जेक्ट आ जाए तो आपको लगता है कि पढ़ाई दे. तो इन द सेम वे हमें लग रहा है कि यस, लाइक हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, बट इट्स ओके. सो इकोनॉमिक्स में रेफरेंस सेट 1, रेफरेंस पार्ट 1. अब देखिए इसमें जो है कि दो बुक होती है. एक जो है कि दत्तम सुंदरम की बुक्स है. अगर आपको मास्टरी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप जो है दत्तम सुंदरम ले सकते हैं. एंड दत्तम सुंदरम से बेस्ट बुक कोई नहीं है. फिर आप जो है कि थोड़ा सा अगर आते हैं तो फिर आप ये बुक ले सकते हैं, रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं. ये है, देखिए रमेश सिंह की बुक है ये इकोनॉमिक्स, ठीक है. ये बुक्स भी आप ले सकते हैं. एक पूरी की भी बुक आती है इकोनॉमिक्स के लिए आपका, तो मिश्रा एंड पूरी, आप वो भी ले सकते हैं. तो कौन कौन सी हो गई? मिश्रा एंड पूरी हो गई, दत्तम सुंदरम हो गया, या फिर रमेश सिंह. तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं लेना है. बेटर ये है कि आप दत्तम सुंदरम ले लें अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है. नहीं है तो आप रमेश सिंह या फिर मिश्रा एंड पूरी में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं. देखिए इकोनॉमिक्स में आपको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट होती है उसको भी रिफर करना होता है. द हिंदू न्यूज़पेपर में जो बिजनेस लाइन आती है उसको भी पढ़ना होता है. प्लस इकोनॉमिक्स टाइम में आपका जो है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस पेज होता है, वो भी आपको पढ़ना होता है. एंड इसमें भी जो है इकोनॉमिक्स में भी आपको एनसीईआरटी रिफर करनी होती है 11th एंड 12th के लिए. 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी आती है आप उसको जो है कि रिफर कर सकते हैं. फिर जो है कि लाइक इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है जस्ट आफ्टर द बजट. तो आप इकोनॉमिक सर्वे को भी देखना है आपको. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेबसाइट तो मैंने आपको बता दिया. एक जर्नल है ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिव्यू. सो ईपीडब्ल्यू भी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली. इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली ईपीडब्ल्यू जर्नल भी आप एक एडिटोरियल है, आप इसको भी रिफर कर सकते हैं. सो सिंपली इकोनॉमिक्स में आपका रेफरेंस सेट 1, रेफरेंस सेट 1 में आपका एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा होता है. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. देन आपका जो है कि जो बी पार्ट है इसमें एनसीईआरटी 12th वाली एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड 12th,
जिसमें इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इसके बाद से अगर टेक्स्ट बुक देखें तो टेक्स्ट बुक वैसे मैंने बता दिया है, बट आप देख लो। एक रमेश सिंह हो गए टीएमएच पब्लिकेशन के, और एक स्पेक्ट्रम चाहो तो ले सकते हो। स्पेक्ट्रम, ठीक है। इकोनॉमिक पेज ऑफ न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक पेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड बिजनेस न्यूज, बिजनेस न्यूज आपको सुनना है। देन इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डिक्शनरी, ठीक है। अब आते हैं रेफरेंस सेट सेकंड। रेफरेंस सेट सेकंड, इकोनॉमिक डिक्शनरी, रेफरेंस सेट सेकंड, रेफरेंस सेट सेकंड, इसमें आप जो है कि इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पहला, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, इसमें बिजनेस लाइन, बिजनेस लाइन, देन बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, एंड देन इकोनॉमिक्स टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स। देन इसके बाद से आता है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक मैं आपको बता चुका हूं कौन से, दत्तम सुंदरम या मिश्रा एंड पुरी, मिश्रा एंड पुरी, दत्तम सुंदरम, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, published by Government of India, जस्ट आफ्टर द बजट पब्लिश होता है, जस्ट आफ्टर द बजट, तो उन्होंने मार्च में, आप समझ लो मार्च में आता है नियर अबाउट।
मार्च में आपको मिलेगा, ठीक है। देन आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेबसाइट, Ministry of Finance website, and then EPW. EPW क्या होता है? Economical Political Weekly. Economic Political Weekly. जनरल एडिटोरियल, तो ये आपका जो है इकोनॉमिक्स का है। सो मेनली जो इकोनॉमिक्स है, सो इकोनॉमिक्स में आपके जैसे एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़नी है जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से आती है। देन एनसीईआरटी क्लास 12 वाली पढ़नी है जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आती है। फिर आप जो है टेक्स्ट बुक कोई भी ले सकते हो, टीएमएच रमेश सिंह की जो मैंने आपको दिखा दिया, ये वाली है रमेश सिंह की, ये ले सकते हो, या फिर आप जो है स्पेक्ट्रम ले सकते हो। इकोनॉमिक पेज ऑफ न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर देख रहे हो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल, द हिंदू, उसका इकोनॉमिक पेज देखना है। बिजनेस न्यूज एंड इकोनॉमिक्स डिक्शनरी ले लेना है, क्योंकि उससे क्या होता है कुछ टर्म्स इकोनॉमिक्स में टेक्निकल होते हैं, क्योंकि मोस्टली इंजीनियर्स एंड डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, तो उनका नाता दूर दूर तक इकोनॉमिक्स से नहीं रहता है। तो इफ दे आर प्रिपेयरिंग बाय सेल्फ, सो उनके लिए जो डिक्शनरी है वो बहुत ही हेल्पफुल है, तो डिक्शनरी ले सकते हैं। देन अगर रेफरेंस सेकंड की बात करूं मैं, तो इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में बिजनेस लाइन देखना है, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड द इकोनॉमिक टाइम्स। टेक्स्ट बुक मैंने डिस्कस कर ही दिया, मिश्रा एंड पुरी एंड दत्तम सुंदरम, दोनों में से कोई है। इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है जस्ट आफ्टर द बजट, मेनली जो है मार्च के मंथ में आता है, या फिर जब बजट होगा उसके बाद ही आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेबसाइट आपको देखते रहना है, एंड ईपीडब्ल्यू जो है मैगजीन है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, इसको देखते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिलेबस। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो लेट्स